First thing in the chapter 2 is the distance formula. Okay, that's chapter 2. It's the straight line. Distance formula. Okay. So I ask you the question: what is abscissa? Abscissa, and what is ordinate? Abscissa. We call x-axis as abscissa. Point at x is called abscissa, and ordinate is y. Somewhere it's written in place of y as ordinate. Okay, remember it. It's important. It's fine. Distance formula is d is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the distance formula. You have to remember it. The question in aptitude test come like simple. They will be given you the 2 points, 2 comma 3. If these will be the points, then what will be the distance between the two lines? 5 comma 4. You just have to put the values in the formula. How? This is the x1, we'll putting here. This is x2, we'll putting here. Sorry. Okay. x1 y1 ordinate, x1 y1 and x2 y2. By putting these values in this formula, you can calculate its distance. Tell me the distance of this question. Calculate it and tell me the distance. Putting 5 here minus 2. So x2 is this and x1 is 2. Similar to this, y2 minus y1. y2 is 4 and y1 is minus 3 square. So if we are calculating it, 5 minus 2 is 3, 3 square is 9, 5 minus 2 is 3, 3 square is 9 plus 4 minus 1 is 4 minus 3 is 1, 1 square is 1, so 9 plus 1 is under root 10 is the answer. Right. Another type of question is given to you like this, that they will be asking you the any point and distance will be given to you like this. If the distance is given to you as 4 meters and the 2 points are 2 comma 3 and 6 comma y, you have to find the y in this question. Okay, distance is given to you, you are putting 4 in place of d and all the values, and you have to find y value. What is this? This is y2. Okay, you have to find y2 and from the distance formula.
there are different types of triangles, and with the name of triangles, you can evaluate that how many sides of those triangles are equal, or the angles, sides and the angles. Okay, if I'm talking about equilateral triangle. Wait a moment, I will write. Equilateral triangle. Next is isosceles. After this, scalene, right angle triangle. Okay, so these are the types of triangle. What is equilateral triangle now? In which all the sides are equal, means A is equal to B is equal to C. All the three sides of the triangle are equal. Okay, similar to like this. This is the triangle, and this is at side A. This is B, and this is C. So all these sides are equal. A, B. These are the points, and C. And also there will be the angles. It will be alpha. It is beta, and it is gamma. So all the three angles in the equilateral triangle are also equal. So alpha is equal to beta is equal to gamma. All three sides are equal, all three angles are equal. 60 degree, if the alpha is 60 degree, then beta will also be 60 and gamma will also be 60. A is 60 meters, then B will also be 60 and C will also be 60 in equilateral triangle. Now talking about isosceles, in isosceles, A is equal to B is equal to C. Two sides are equal, but one side is not equal. Any side cannot be equal. Sometimes it's not, C will not be equal. Sometimes A will not be equal to B. So this is how isosceles triangle will be created. This is the how A is not equal now. Sometimes B will not be equal. Okay. So, and similar to this sides, one angle will also not equal to other two angles. Like if alpha equal to beta is equal to gamma is given to you, beta is not equal sometimes. Alpha, beta, and sorry, this is gamma. So alpha is not equal. So this is how any one of the angle or any one of the side among the three sides is not equal. In a scalene, talking about the scalene, what is scalene? All three sides are not equal. Okay? All three sides are not equal to each other. All three sides have different distances. One is of 60, one is of 50, one is of 40. And similar to this sides, all three angles are not equal. Okay, all three angles are also not equal. These are all the triangles, right angle triangle.
In right angle triangle, A is greater than B and C. Right angle means one angle will be equal to 90 degree. If alpha is equal to 90 degree, okay, the other two will be the smaller angles than 90, because total three angles sum is equal to 180 degrees. So the other two angles beta and gamma will be of 45 plus 45 or 40 plus 50, like this. So in this case, when A is greater than B and C, right, A is greater than B and C. Wait a moment. वालेकुम सलाम. जी जी. Square. Talking about square. What is a square? Square, all sides are equal. S1, S2, S3, S4, and diagonals are also equal. Okay, D1, D2. This is S1, this is S2, this is side 3, this is side 4 as for side, and this is diagonal 1, this is diagonal 1, and this is diagonal 2. Okay, so all the sides are equal and all the both of the diagonals are equal. But if we are talking about rhombus, this is rhombus. Okay. In rhombus, all sides are equal, but the diagonal are not equal. This is the difference between square and rhombus. All sides are equal, but diagonal will not be equal in rhombus. Okay. All these sides are equal. All four sides are equal, but this diagonal is bigger than this one. Okay. So this is the difference between square and rhombus. Next, rectangle. Rectangle, two sides are opposite to each other. In rectangle, two sides are opposite and equal. If this is S1, this is equal to S2. All four sides are not equal. They both are equal and they both are equal. S3 and S4 will be equal. Okay. Now if I'm drawing their diagonals, okay, I have received. जी जी रिसीव कर लिया. जी. और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि साइड्स बराबर होती हैं, इसी तरह दो दो जिस तरह रेक्टेंगल में होती है. ठीक है. ये साइड S1 है तो ये साइड S2 है, ये दोनों आपस में बराबर है. और ये वाली साइड S3 एंड इसके पैरेलल साइड S4 जो है, ये दोनों आपस में बराबर है. ठीक है. बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. So this is the difference between rectangle and parallelogram. Diagonals of the rectangle are equal, but the diagonals of the parallelogram are not equal. ये दोनों equal नहीं होते. D1 is not equal to D2. Now point of division. Point of division क्या होता है? अगर एक straight line है
इसके पॉइंट्स हम लोग, स्ट्रेट लाइन है, इनफाइनाइट लाइन होती है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है नहीं पता, लेकिन हम दो पॉइंट्स मेजरमेंट के लिए कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं। वी आर कॉलिंग इट एज x1 x2, x1 y1 एंड x2 y2। ओके, और बीच में अगर हम कोई पॉइंट ले लें यहाँ पर, इसको कहें x और y, तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, इफ x1 से लेके x तक का, इसको हम कहते हैं m1, इसको कहते हैं m2। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन फॉर्मूला है m1 x2, m1 के साथ x2 आएगा, ये याद रखिएगा, m1 के साथ x2 आएगा और m2 के साथ x1 आएगा। ठीक है, दोनों सेम नहीं आएंगे। अगर x1 लिखा है तो m2 लिखेंगे इसके साथ, x1 के साथ m1 नहीं आएगा, और नीचे m1 प्लस m2 ही है दोनों में। ये x कोऑर्डिनेट का पेपर है, इसी तरह y कोऑर्डिनेट का है, फिर कॉमा आएगा, यहाँ पे भी इसी तरह m1 y2 होगा, m1 y2 प्लस, अब m2 है तो y1 आएगा। ठीक है, और नीचे m1 प्लस m2 है। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन फॉर्मूला। और अगर ये रेशो में गिवन है आपको, m1 अपॉन m2 गिवन है, m1 अपॉन m2, तो इसको हम ले लेते हैं r इज इक्वल टू r होता है ये। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है r की फॉर्म। ठीक है, r की फॉर्म में क्या होता है, x1 प्लस, इसमें यह है कि अगर आपके r गिवन है सवाल में, तो आप डायरेक्ट r की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, x1 प्लस r x2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस r, और ये कॉमा y1 प्लस r y2 1 प्लस r। ये वही फॉर्मूला है, बस r हमने अब कॉमन ले लिया। आप ये समझें कि m1 m2 को r में बंद कर दिया। अगर r की वैल्यू आप यहाँ पे m1 और m2 रखेंगे, तो फिर जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो दोबारा यही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फॉर पॉइंट ऑफ डिवीजन फार्मूलाज। मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ है कि फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, अगर एक्सटर्नल डिवीजन आपसे पूछा जाएगा तो उसमें m2 जो लेंगे आप, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, m2 हमेशा नेगेटिव होगा इन एक्सटर्नल डिवीजन। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए दिस इज अ नोट that for external division m2 will be negative। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 1,2 -3, -2, और आपको रेशो गिवन है 2:3। इस तरह सवाल भी आता है, कोई वर्डिंग नहीं है, तो वर्डिंग में भी आता है, इस तरह भी आता है। ठीक है, तो ये क्या गिवन है आपको, x1 y1 x2 y2, और ये क्या गिवन है, m1 और m2।
आप मुझे सवाल सॉल्व करके बताएं, इंटरनली और एक्सटर्नली। इसके दो पॉइंट्स आप निकालेंगे, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। और एक्सटर्नली में क्या करेंगे, बस आपने m2 जो है वो नेगेटिव में रखना है, फॉर्मूला वही यूज़ करना है जो भी हमने पॉइंट ऑफ डिवीजन का पीछे लिखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे, जैसे m1 फॉर्मूला था, फॉर्मूले में सबसे पहले क्या था m1, तो m1 क्या है 2, मैंने लिख दिया 2। m1 लिखा है तो उसके साथ क्या आता था x2, x2 क्या है -3 है, -3 लिख दिया। m1 के साथ हमेशा क्या आएगा x2, बीच में क्या आता है प्लस। अब क्या लिखेंगे आप m2, m2 क्या है 3, m2 के साथ क्या आएगा x1, x1 क्या है 1, 1 लिख दिया। अब यहाँ पे नीचे क्या आता था m1 + m2, तो 2 + 3 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा x की टर्म पूरी। अब इसी तरह y की टर्म, सबसे पहले अगर m1 लिख रहे हैं 2, तो उसके साथ लिखेंगे y2, y2 इज़ 2 प्लस, अगर m2 लिख रहे हैं 3, इसके साथ लिखेंगे y1, तो y1 क्या है 2, दोनों 2 है, नीचे आ गया 2 + 3। तो ये पूरा पॉइंट ऑफ डिवीजन का हमने फॉर्मूला लिख दिया। इसका सवाल सॉल्व करें, -3 2 -6 + 3, तो ऊपर आ रहा है -3/5, ये x की वैल्यू आ गई है। और यहाँ पे 2 2 4 प्लस 3 2 6, 10, 10/5 इज 2, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2। दिस इज द आंसर फॉर इंटरनल। अब एक्सटर्नल में क्या करना है आपको, एक्सटर्नली में यहाँ पे आप यूज़ करेंगे क्या, माइनस का साइन। ठीक है, m2 होता है माइनस, बस आपने यहाँ पे माइनस साइन चेंज करना है, बाकी पूरी चीज़ सेम रहेगी। यहाँ पे भी चेंज होगा, जहाँ जहाँ m2 पुट करेंगे वहाँ वहाँ चेंज होगा, मतलब m2 की वैल्यू -3 हो जाएगी। यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में भी। अच्छा, इसके अलावा अगर इंटरसेप्ट क्या होता है, ग्राफ है ये, अगर ये लाइन x एक्सेस को कट कर रही है, तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो x, y है, लेकिन यहाँ जो पॉइंट है क्या है x, 0, x, 0, जॉइन कट एट x एक्सेस, ये कट लगा हुआ है x एक्सेस पे। ठीक है, इसका जो ये दूसरा पॉइंट यही यहाँ पे है x2 है, ये लाइन है, लेकिन इसका जो मिडिल पॉइंट है वो कट कर रहा है एट x एक्सेस, तो इसका जो r होगा, ठीक है, r क्या होता है m1/m2, m1/m2, इसकी डायरेक्ट जो वैल्यू आ जाएगी -y1/y2 आ जाएगी। ये कैसे होता है, इसके पीछे पूरी डेरिवेशन है, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ जो m1/m2 का होता है। m1/m2 का फार्मूला -x -x1 अपॉन x -x2। ठीक है, ये होता है, या फिर माइनस इसी तरह -y -y1 और y -y2। ये तब का फॉर्मूला है जब x1 और y1 दो पॉइंट हो, इसी तरह x1 y1 और x2 y2, और वो डिवाइड हो रहे हो बाय x एंड y, और m1 m2 आपके पास रेशो है। सही है,
तो तब अगर आप उसको डिराइव करेंगे तो फिर ये वैल्यूज आएंगे M1 M2 की, ये आएगी। ये दोनों आप साथ भी लिख सकते हैं कॉमा डाल के, यहाँ पे भी लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू, या अलग भी लिख सकते हैं, एक ही बात। ठीक है, तो अब इस में हमने जब y वैल्यू 0 रखी है, y वैल्यू हमने 0 रख दी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे क्या है 0 है, 0 रख दिया हमने, तो यहाँ पे क्या बच गया -y1, और यहाँ पे -y2। ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, इसलिए ये ऊपर माइनस बचा सिर्फ। ठीक है, इसलिए ये आपके पास आंसर आए इस फॉर्मूले में पुट करके। इसी तरह अब जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सेस को, ये एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही थी, इसी तरह अब जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी वाई एक्सेस को, ये लाइन इधर यही x2 y2 है, इधर x1 y1 पॉइंट है, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है 0, y। x क्या है 0 है क्योंकि y पर है, ठीक है, y से कट कर रही है तो x 0 होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है x की। अब क्या r बन जाएगा m1/m2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, अब इसमें आप पुट कर दें x 0, यहाँ पे आपने 0 पुट किया, यहाँ पे आपने 0 पुट किया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो -x1/x2। ठीक है, इसके बाद मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इसके सवाल आते हैं मिड पॉइंट के, डिस्टेंस फार्मूला, ज़्यादातर ये ज़्यादा सवाल आते हैं। मिड पॉइंट लाजमी आता है, डिस्टेंस फार्मूला आता है। सिंपल मिड पॉइंट क्या होता है, ये लाइन है आपके पास, इसी तरह ये x1 y1 है, पॉइंट y1, ठीक है, x1 y1, ये x2 y2 है, और इसके दरमियान इसका पूछते हैं मिड पॉइंट क्या है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट कहलाता है। तो हमें पता नहीं है, हमें यहाँ पे दो वैल्यू दी है, एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए हैं, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, लेकिन मिड पॉइंट उन्होंने पूछा है, तो मिड पॉइंट बस इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज़ डालनी है, मिड पॉइंट आ जाएगा x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। इस तरह आप मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो x की होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो y की होगी, तो यहाँ पे आपके पास एक मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है, हमने मिड पॉइंट क्या होता है, एक लाइन है, इसको एक जगह से काटता है, तो ये क्या है, दो हिस्सों में टूट रही है ना लाइन, एक हिस्सा ये हो गया और एक ये हो गया। ट्राई सेक्शन नहीं है ये, सिर्फ बाई सेक्शन है, सिर्फ दो टुकड़े हो रहे हैं। अगर लाइन के ट्राई सेक्शन मतलब ये लाइन है, इसके 3 हिस्से करें, ट्राई, ट्राई मीन्स 3, 1 2 3। अब इसका एक पोर्शन ये, एक ये है, एक ये, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। तो जब ट्राई सेक्शन करते हैं तो फिर क्या फॉर्मूला होता है, क्या चेंज आता है उसमें, इसमें ये होता है कि अगर यहाँ पे m1 है, अगर बोलेंगे कि 1/4 ऑफ द ट्राई सेक्शन लाइन, तो m1 की वैल्यू 1 होगी और m2 की वैल्यू, लाइक दिस इज m1 और m2 के लिए कितना है 2, तो m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर बोलें कि m1 यहाँ पे लाई कर रहा है, अगर यहाँ पे लाई करता है m1, तो m1 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हो जाएगी। ये आपको वर्डिंग में इस तरह लिखा होता है कि 1/4
या टू क्वेश्चंस इस तरह लिखा होता है ऑफ अ ट्राइसेक्शन. If a line is trisected and two two portions of it consist by the m1 and then the rest is m2, या रेस्ट अगर m2 नहीं मिलेगा तो इट इज ऑब्वियस दैट m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी. तीन ही सेक्शंस हैं तो 2 अगर m1 है तो m2 1 हो जाएगा. अब m2 क्या हो जाएगा ये. ठीक है. तो इस तरह ये वैल्यूज आप निकालते हैं पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन में. खुद ही से करना होता है. ये फॉर्मूला वही यूज़ होगा जो अभी हमने लिखा है m1 m2 का. जस्ट अब आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं. जैसे m1 आ गया है आपके पास 1 और m2 आ गया है 2. ठीक है. पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की बात कर रहा हूँ. पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब m1 और m2 की वैल्यू आप वहाँ से खुद निकाल सकते हैं. जस्ट आपके पास लाइन गिवन होगी और आपने खुद m1 m2 की वैल्यू एवेल्यूएट करनी है लाइन को देखकर. अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा. 2 अगर 2 m2 2 है तो 2 के साथ क्या आता था m2 के साथ x1 आता था x1. और यहाँ पे m1 1 ही है तो m1 के साथ क्या आता था x2 लिख दूंगा मैं. 1 नहीं लिख रहा. सही है. नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3. तो ये डायरेक्ट वही फॉर्मूला पॉइंट ऑफ डिवीजन का जो आपने किया है मैं इसमें वैल्यूज डाल के डायरेक्ट लिख रहा हूँ. इसी तरह ये भी 2 क्या है m2 तो m2 के साथ क्या आता था y1 तो y1 लिख दिया. m2 की वैल्यू लिख दी 2 प्लस m1 1 है नहीं लिखेंगे और m1 के साथ क्या आएगा y2 लिख देंगे. नीचे क्या है m1 प्लस m2 इज 3. ठीक है. अब ये डिफरेंट केसेस में ये अगर दो क्वेश्चन उसके हैं m1 की वैल्यू अगर 2 है तो फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. आप वैल्यूज इस केस में क्या हो जाएगा आप m1 की जगह 2 पुट करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है. जिस तरह सवाल होगा फिर आप उस तरह चेंज कर देंगे. यहाँ पे भी 2 आ जाएगा यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा. बाकी पूरा सेम है. तो दिस इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. मिड पॉइंट डायगोनल्स अगर रेक्टेंगुलर अगर मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल की डायगोनल्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं. सॉरी वो इक्वल होती हैं नहीं होती. मैंने भी आपको बताया था. तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर डायगोनल्स रेक्टेंगुलर की तो होती हैं बराबर. रेक्टेंगुलर की डायगोनल्स दोनों होती हैं बराबर. ठीक है. ये रेक्टेंगल है आप रेक्टेंगल होते हैं इसकी डायगोनल्स बराबर हैं. तो अगर डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी. ठीक है. इधर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. ठीक है. परपेंडिकुलर का जब भी लफ्ज़ है तो समझें 90 डिग्री का एंगल होगा. तो फिर क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगी स्क्वायर बन जाएगा. क्योंकि स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं. लेकिन इसमें 90 डिग्री बन रहा है. हर जगह से 90 डिग्री बन रहा है. ठीक है. तो if the diagonals of the rectangular are perpendicular then it will be a square. ये पॉइंट याद रखिए. इस तरह MCQs आ जाते हैं मैथ्स में. और दूसरी चीज़ एक और कि अगर पैरेललोग्राम की डायगोनल्स नॉट इक्वल होती हैं इनके इक्वल नहीं होती डायगोनल्स. ठीक है. अभी हमने देखा था. तो फिर क्या होगा अगर इन दोनों की डायगोनल्स को हम परपेंडिकुलर कर देंगे तो ये बन जाएगा रोम्बस. ये याद रखिएगा.
रेक्टेंगल की डायगोनल्स को परपेंडिकुलर किया तो स्क्वायर बन गया, और पैरेललोग्राम की डायगोनल्स को हमने परपेंडिकुलर बनाए तो वो बन जाएगा रोम्बस। बस ये एक पॉइंट है। सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है? सेंट्रॉइड अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, मीडियन क्या होता है, पहले मीडियंस बनाएंगे। ये इसकी मीडियन है, इसकी मीडियन है, इसकी मीडियन। ठीक है, ये तीन मीडियंस बना दी सारी साइड्स के साथ। इसका जो वर्टेक्स है, ये सारी मीडियंस कहाँ ज्वाइन हो रही हैं, एक पॉइंट पर, तो इट्स कॉल्ड अ वर्टेक्स। तो मीडियन इज द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स विद इट्स ऑपोजिट साइड ऑफ द मिड पॉइंट। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये कहलाएगा सेंट्रॉइड। जहाँ पे सारी मीडियंस आके इंटरसेक्ट हो रही है। सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होता है? x1, अब इन तीनों के अलग अलग पॉइंट्स है, ये x1 y1 है, ठीक है, ये तीन लाइंस हैं, ठीक है, ये x3 y3 है, और ये x2 y2। इन लाइंस का लिखा है मैंने, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की जो पॉइंट्स हैं वो ये है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इस तरह ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। अच्छा, इक्वल ट्राइंगल होगा, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो उसकी कितनी मीडियंस होगी? तीन मीडियंस होगी, और तीनों मीडियंस इक्वल होंगी। स्केलीन ट्राइंगल होगा तो हैज़ नो इक्वल मीडियंस। स्केलीन के क्योंकि तीनों साइड्स बराबर नहीं है तो कोई इक्वल मीडियन नहीं होगी। तो जब इक्वल मीडियंस नहीं होती तो फिर सेंट्रॉइड भी नहीं बनता, क्योंकि एक जगह से वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही होगी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ टू इक्वल मीडियंस। ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। Scalene has no equal medians, equilateral has 3 equal medians, and isosceles triangles has 2 equal medians. इसके बाद है इन सेंटर। सेंटर इस तरह सर्कल के हैं, ट्राइंगल हो, ट्राइंगल के अंदर अगर सर्कल हो तो कहते हैं इन सेंटर। ठीक है, it is the intersection point of internal bisector of angles in a triangle where, इसका फॉर्मूला होता है, नीचे आएगा a प्लस बी प्लस सी, पर क्या आ जाएगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। ये हो जाएगा एक पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट, a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह पूरा फॉर्मूला आप लिखते हैं y के साथ, ay1 by2 cy3। ठीक है, इसके जैसे आपको फॉर्मूलाज याद हो, साइड्स आपको दी होंगी, ए बी सी गिवन होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। अगर आपको बोलेंगे इन सेंटर निकालें तो बस आपने फॉर्मूले में पुट कर देनी है, वैल्यूज आ जाएगा। स्लोप क्या होता है?
स्लोप अगर ग्राफ है, ये क्या ग्राफ, इसके ऊपर मैंने एक बना दी, ढलान को कहते हैं स्लोप। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो स्लोप जो होता है, स्लोप परपेंडिकुलर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर आप परपेंडिकुलर को बढ़ाएंगे तो स्लोप बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ तक है ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को अगर यहाँ तक मैंने बढ़ा दिया तो स्लोप बढ़ गया। बेस यहीं पे रखी बेशक, ठीक है, स्लोप बढ़ जाएगा। और बेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लोप। बेस आप कम करेंगे स्लोप बढ़ जाएगा, बेस ज़्यादा करेंगे स्लोप कम हो जाएगा। और परपेंडिकुलर की डायरेक्टली परपेंडिकुलर बढ़ा रहे हैं स्लोप कम हो, स्लोप बढ़ रहा है, परपेंडिकुलर कम कर रहे हैं स्लोप कम हो रहा है। ओके, तो ये याद रखिएगा। और फिर इस तरह इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं और फिर पी अपॉन बी, दोनों को मिला दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। और अगर हम लोग इसका थीटा निकालें, टेंटेड पर्पल ब्लू, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह m इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है। ये वैल्यूज हमने टेन थीटा यहाँ पुट कर दें तो m इज इक्वल टू टेन थीटा। इसलिए हम लोग m इज इक्वल टू टेन थीटा भी पुट करते हैं, यूज़ करते हैं जहाँ यूज़ करना हो, कभी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज़ करते हैं। तो ये सवाल में जो रिक्वायरमेंट है उसको देख के हम लोग स्लोप की फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर एंगल गिवन है तो आप डायरेक्ट m टेन थीटा लगा के स्लोप निकाल लें। अगर एंगल नहीं गिवन, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है, तो आप ये यूज़ कर लें परपेंडिकुलर और बेस। अब एक चीज़ है, ये ग्राफ है, दिस इज द लाइन, एक ये एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, अब इसमें ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर परपेंडिकुलर जो है और बेस m होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्लोप, स्लोप की वैल्यूज जो हैं, दैट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस ये कोऑर्डिनेट्स में भी गिवन हो सकती है, लाइक y2 माइनस वाई वन, आप y2 माइनस वाई वन यूज़ करेंगे यहाँ पर, अपॉन x2 माइनस x1। ये भी फॉर्मूला होता है स्लोप का, आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो x2 माइनस x1 ये किस तरह यूज़ करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर ठीक है, मैंने एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं और ये अगर y2 है, y2 की लाइन है, और यहाँ पे y1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x1 है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो होगा ये एंगल थीटा है इसका, ये परपेंडिकुलर है y2 और यहाँ पे ये y1 परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर हो रहे हैं, ये दोनों बेसिस हैं। ठीक है, x2 x1, तो ये इसका फॉर्मूला डेरिवेशन है, ये एक तरह से y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 ये इज इक्वल टू m होता है डायरेक्ट। अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है,
अगर डायरेक्ट परपेंडिकुलर की वैल्यूज गिवन है तो डायरेक्ट आप परपेंडिकुलर की वैल्यू डाल देंगे 20, 30, 40 कुछ भी है, लेकिन 2 पॉइंट गिवन है तो उसमें y2 माइनस y1 करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे। अब बात करते हैं लाइंस की। अगर 2 लाइंस पैरेलल हों, पैरेलल लाइंस हैं तो क्या होगा, स्लोप क्या होगा उनका। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये एक एंगल बना रही है, ये एक एंगल बना रही है, ठीक है। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, L1 इज पैरेलल टू L2, देन व्हाट विल बी द स्लोप। देखें दोनों के एंगल जो है बराबर है, एंगल अगर इसका भी 20 डिग्री है तो इसका भी 20 डिग्री है, 80 डिग्री है तो दोनों का 80 डिग्री है, तभी वो पैरेलल है, ठीक है। तो एंगल दोनों के बराबर हैं, θ1 इज इक्वल टू θ2। ये याद रखिए जब भी लाइंस पैरेलल होंगी इनके एंगल बराबर होंगे। तो एंगल बराबर है तो स्लोप भी बराबर होगा। When the two lines are parallel, then the slope will be equal. Okay? क्यों? क्योंकि स्लोप की वैल्यू क्या होती है, अभी आपने पढ़ा था m इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा होती है ना। तो जब टेन थीटा m1 का होगा और m2 का भी टेन थीटा होगा और थीटा दोनों के बराबर है, 10, 20, लेकिन दोनों की वैल्यू हमने सपोज की 20 है, 20 एंगल है, तो 10, 20 की वैल्यू जो आएगी वही 10, 20 की, अगेन दूसरी लाइन की भी वही वैल्यू है 10, 20 की, और वैल्यू वैल्यू भी L1 की वही वैल्यू है। तो इसलिए M1 M2 बराबर हो जाएंगे when the lines are parallel. ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ when the lines are perpendicular, जब लाइंस परपेंडिकुलर हो, द ग्राफ दो लाइंस मैंने बना दी, ये जो है आपस में 90 डिग्री बना दी, परपेंडिकुलर है, ठीक है। दिस इज द θ1, θ1 है, इसके आगे θ2, ठीक है। ये लाइन 1 है, लाइन 1, दिस इज लाइन 2, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन। अब क्या होगा, ये क्या है लाइन दोनों आपस में, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप होता है -1। चले इसकी डेरिवेशन भी है, आपको चले बता देता हूँ। θ1 प्लस 90 डिग्री प्लस θ2, चले छोड़ें इसको, डेरिवेशन को छोड़ दें क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर रिकैप। M1 मल्टीप्लाई बाय M2 is equal to -1. When the lines are perpendicular, then the slope between the both is equal to -1. ये याद रखिएगा। जब पैरेलल है तो स्लोप बराबर है M1 इज इक्वल टू M2, जब परपेंडिकुलर है तो स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। एक और फॉर्मूला होता है इसका, टेन थीटा। अगर आपको थीटा के हिसाब से करना है तो M1 माइनस M2 1 प्लस M1 M2, ये एक फॉर्मूला है। ये जब यूज़ होगा जब आपके पास दो फॉर्मूलाज गिवन होंगे, दो लाइंस के दरमियान जब एंगल आपको फाइंड करना है,
मीन्स, और ना वो परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, उनके दरमियान डिफरेंट एंगल्स हैं, परपेंडिकुलर पैरेलल नहीं है, एंगल्स डिफरेंट है, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस पे भी दो तरह के फॉर्मूला होते हैं कि कभी m2 पहले आ जाता है, यहाँ पे m2 आ जाएगा, m2 माइनस m1 होता है, और कभी m1 प्लस m1 माइनस m2 होता है। तो उसमें ये क्या डिफरेंस होता है, जब लाइन फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1, ठीक है, तो तब आपके पास m1 पहले आएगा, सही है, और m2 माइनस में आएगा। और जब लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ जा रहे हैं, लाइन 1 फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, तो फिर आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, m2 पहले आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला नीचे सेम है, 1 प्लस m1 m2। ओके, तो ये दो फार्मूलाज आप कंडीशन देख के यूज़ करते हैं। ये भी हो सकता है कि थीटा 1 इज़ ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 1 इज़ ग्रेटर देन थीटा 2, तो थीटा 1 जो है वो m1 का है, और यहाँ पे थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 1। ठीक है, ये इसका। अब आपके पास सवाल किस तरह आता है, स्लोप का सवाल आएगा, दो पॉइंट्स गिवन हैं आपको, 1,3, 2, -5, पैरेलल 3, -1, 4,1। स्लोप क्या है कि मैंने इन्होंने बताया, स्लोप आपको कि स्लोप पैरेलल है। अब आप इसका स्लोप निकालें, इसका स्लोप निकालें, इसका स्लोप किस तरह निकालें, m1 क्या होगा, m2 माइनस m1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, क्या होता है स्लोप, ये दो पॉइंट्स का स्लोप ये होता है ना, x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट कर दें, y2 के क्या वैल्यू है, -5, माइनस लिख दिया, y1 क्या है 3, और नीचे x2 2 है, -1, ये आंसर आ रहा है 8। ठीक है, m1 8 आ गया हमारे पास, यहाँ से m2 निकालेंगे, दोबारा वही करें, y है y2, माइनस y1 की जगह -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, x2 क्या है 4, माइनस x1 क्या है 3, तो ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, 4 माइनस 3 इज़ 1, तो y प्लस 1 m2 की वैल्यू आ गई है। इस तरह हम लोग दो स्लोप्स निकालते हैं, और अब कंडीशन पे देखते हैं कि क्या कंडीशन गिवन है। ओके, यहाँ कंडीशन देखते हैं क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, m1 इज इक्वल टू m2, और सॉल्व कर देंगे। -8 नहीं आएगा, m1 क्या है 8 है, y प्लस 1, y माइनस, यहाँ माइनस जाएगा, 8 माइनस 1 क्या होता है 7, y इज इक्वल टू 7 आएगा। आपने कंडीशन लगा दी है उसकी परपेंडिकुलर की, इसलिए आप बोल रहे हैं -8 आएगा, -8 नहीं है, सही सही, यहाँ पे -8 सही सही, यहाँ पे यहाँ पे -8 आएगा, सही है। तो जैसा -8 करके सॉल्व कर लिया, -8 आएगा, -8 माइनस 1 इज -9, तो y इज इक्वल टू -9। ओके, ये याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर और पैरेलल, इसमें गलती नहीं करेगा, जब व्हेन पैरेलल इज गिवन देन m1 इज इक्वल टू m2, व्हेन इट विल बी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पे m1 मल्टीप्लाई बाय m2 और इज इक्वल टू -1। तो फिर अगर यही केस हमारे पास परपेंडिकुलर के लिए हो तो फिर क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ, m1 -8 है और m2 y+1 है, सही है, m1
अभी यही केस हो, मैं आपको बोलूँ कि परपेंडिकुलर के लिए करेंगे, ठीक है। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, ये कंडीशन यूज़ करेंगे। m1 की वैल्यू आपके पास आ गई है -8, और मल्टीप्लाई बाय m2 की वैल्यू आपके पास पता है y+1 इज इक्वल टू -1। जी अनस, पूछें, आप कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है, तो सॉल्व करें। y+1, ये -1/-8, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। y, अब यहाँ पे y है 1/8, ये +1 भी उधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका एलसीएम लें और आंसर लिख दें, -7/8, ठीक है, ये आंसर। अब अगर आपके पास सवाल हो लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान एंगल गिवन है आपके पास 45 डिग्री, ठीक है। अब ये नहीं इन्होंने बताया कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर, एंगल गिवन है। तो एंगल गिवन है तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, मैंने आपको बताया था tan वाला। तो tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो tan थीटा गिवन है आपको 45, ने 45 यहाँ पे पुट कर दिया। और आगे आपने क्या यूज़ करना होता था, m2 यूज़ करना होता था या m1। तो m1 यूज़ करेंगे या m2 यूज़ करेंगे यहाँ पर। फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 है, लाइन 2 के ऊपर जा रहा है, तो पहले हम लोग लाइन 2 यूज़ करेंगे। लाइन 2 मतलब m2 यूज़ करेंगे पहले। तो m2 -m1, और नीचे 1 प्लस m1 m2। बस आपने वैल्यूज पुट करनी है अब m1 और m2 की। m2 की वैल्यू हमारे पास y+1 है, और m1 की वैल्यू हमारे पास -8 है। इसी तरह नीचे भी आप वैल्यूज लिख दें और फिर आप सॉल्व कर दें, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y+1 -8। यहाँ पे 1045 को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया आपने, जो भी आंसर आ गया 1 आता है, शायद 1 आ गया है। सॉल्व करें सारा, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप लोग दोबारा ज्वाइन करें।